ओके ओके वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, क्या हाल हैं? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड रेडी फॉर आवर फिजिक्स क्लास टुडे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसमें काफी कंफ्यूजन्स होते हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। Now we've been knowing that circuits normally become an issue for us, and handling circuits is difficult because when you look at a circuit diagram, what normally happens is that in a circuit diagram, we will be doing we look at various elements, and the biggest confusion that happens normally is कि हमें कैसे circuit diagrams को solve करना है. So first of all, I would like to address that. I would like to address why a circuit diagram is difficult and how do we handle it. So circuit diagram में difficulty क्या लगती है? सबसे पहली चीज, when you look at a battery, so the first concern is a battery. बच्चों, बैटरी हमारे पास जो है इसका एक EMF डिफाइंड होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल E. इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसे हम बोलते हैं स्मॉल आर. ये बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं. नाउ व्हाटएवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी गेट अक्रॉस एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू दिस बैटरी. सो इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी मुझे VA माइनस VB निकालना. अब VA माइनस VB निकालना है, बट देयर आर टू थिंग्स दैट हैपन. एक बैटरी जब किसी भी सर्किट को करंट सप्लाई करती है तो हम बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. एंड व्हेन अ बैटरी डिस्चार्जेस इट एक्चुअली सप्लाइज करंट टू एन एक्सटर्नल थिंग व्हिच कैन बी अ रेजिस्टेंस. सो मैं अभी डॉटेड दिखा रहा हूं ऐसे कि अगर ऐसा सर्किट होगा तो ये करंट रेजिस्टेंस को दे रही होगी बैटरी, and this is how the current would be flowing. So अब इस केस में अगर मैं इस रीजन को देखूं और मुझे निकालना है VA minus VB, so सबसे पहले whenever you see a plain wire without any resistance or battery or anything, you can assume that the potential is not changing if there is a plain wire. So if this point is A, I can even name this point as A, because between them there is a wire which is a conducting wire, and due to a conducting wire there will be no potential difference. Now as I come across a battery, the battery has an EMF, so the potential is gonna change. So I'm going to name this point as a point C, क्योंकि ये point जो है ये point A वाले potential वाला नहीं है, इसका potential अलग है, तो it has a different name. So this point will also be called C. This point is B and there is no resistance till we reach small r, so this point can also be called B. So मेरे लिए ये जो potential difference वाले points हैं यही important हैं. अब क्योंकि if I have to go from A to B, if I have to go from A to B, so अगर मैं A to B जा रहा हूं तो सबसे पहले मेरे पास आएगा A to C. And A to C अगर मैं जाऊंगा तो I'll say VA minus VC is equal to plus E, because A is at a higher potential than C. So VA minus VC is positive and is equal to E. Now I go from C to B. You can clearly see that when you're looking at a resistance, जब भी आप कभी एक resistance को देखेंगे, then look at the direction of current. You know that current always flows from higher to lower potential. Now here current is flowing from B to C, it means B is at a higher potential. अब मैं यहां से अगर लिखूंगा VC minus VB, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? स्मॉल I इंटू R. बट क्योंकि B का पोटेंशियल बड़ा है C से, so I'll put it as minus IR. And now to find VA minus VB, I'll add these two equations and I get VA minus VB equals E
minus IR. And that is why the potential difference that you get through a battery is lesser than the EMF of the battery. Right, बच्चों? So ये इक्वेशन कैसे आती है, कहां से आती है, हमें समझना जरूर चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे क्वेश्चंस होंगे. ऑलराइट, अब एक और चीज होती है, when the battery is being charged. अगर हम बैटरी की चार्जिंग कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं? चार्जिंग. Now, when you do the charging of a battery, then if I look at the battery, which has an internal resistance small r, EMF E, this is point B, this is point A. Now, when the battery is getting charged, current is supplied to the battery from an external source. तो आपने प्लग इन किया और बैटरी को चार्ज करना शुरू किया, यानी अब सर्किट में बैटरी करंट नहीं दे रही है सर्किट को, सर्किट में जो प्लग है, प्लग करंट दे रहा है बैटरी को चार्ज कर रहा है. तो करंट आ रहा है अंदर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बाहर जा रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. राइट, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग. नाउ लेट मी कॉल दिस पॉइंट एस सी अगेन. अब आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर केस में, इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर केस, then my VA minus VC is still, A is at higher potential than C. क्योंकि जब हम बैटरी को देखते हैं बच्चों, बैटरी को जब आप देख रहे हो तो आप करंट का डायरेक्शन मत देखो, बैटरी के टर्मिनल्स को देखो कि आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो. So VA minus VC is plus E. Now when I find VC minus VB, I see that the current is from C to B. Current is from C to B. So if the current is from C to B, it means C is at a higher potential. So VC minus VB is going to be positive, but magnitude kitna hoga? I into R. So when I add these two, I get VA minus VB, which is equal to E plus IR. So if I have to charge a battery, then the same current flows through the internal resistance of the battery also. So the potential difference that I need to apply to charge a battery has to be higher than the EMF of the battery. So अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसे 12 वोल्ट की ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगा के आपको चार्ज करना हो. So this is how the charging and discharging circuits are different. That is one thing that I wanted to make very clear to all of us before we move ahead. अब आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, and those important things are, we'll talk about current, we'll look at circuit diagrams, we'll look at resistors, we'll look at meters. Meters are very important. ये meters जो हैं हमारे, ये कवर तो होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स में अगर आप देखेंगे, बट मैं यहीं पे कवर करूंगा क्योंकि ये पार्ट तो इसी का है. And we do a lot of problem solving. So I have around 10-12 problems for you, which I'll keep discussing. So शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज, when we talk about current and drift speed, मैं सिर्फ फॉर्मूलों की बात करूंगा. We know that current in terms of the drift speed can be written as NEAVD. N is the number of free electrons or charge carriers per unit volume. Per unit volume है ये figure. E is the charge on an electron. A is the area of cross section. Area of cross section ये वाला area है. And VD is the drift speed. Drift speed is the speed with which the electrons, average speed with which an electron drifts towards, or a positive charge drifts towards the other end. Drift speed हम ऐसे लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज रैंडमली मूव करेगा, बट हम उसके एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल के हम इन चीजों को निकालते हैं. एंड ड्रिफ्ट स्पीड कैन आल्सो फ्रॉम हियर बी रिटन एज VD is equal to I upon NEA. Important formula, very important for certain things, but yes, easy to handle. And remember this formula is to be remembered क्योंकि इसमें हमें भूलना नहीं है. Next, resistance and resistivity. Resistance R is equal to rho L upon A. Rho is the resistivity of a material. This also increases with temperature. If the temperature is constant, we'll assume the resistivity to be constant. L is the length of the resistor and A is the area of cross section. ये terms हम जानते हैं. एक और term use होता है कई बार, conductivity. So conductivity is equal to, is denoted by sigma, and it is equal to 1 by resistivity. So unit भी उल्टी हो जाएंगी. resistivity की unit है ओम मीटर, तो इसकी unit हो जाएगी per ohm per meter.
Simple terms, but to be remembered. अब आते हैं हम एक सिंपल से क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कहता है a wire of resistance R and resistivity rho is stretched to 3 times its length. What will be its new resistance? What will be its new resistance? तो पहले मेरे पास एक वायर था ऐसा, राइट? इसको मैंने स्ट्रेच करके 3 times its length कर दिया, 3 times its length. So when I stretch this wire to 3 times its length, what happens is that the area of cross section would become 1/3. Why? Because the volume is constant. ठीक है बच्चों? तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए try it for a minute and I hope you'll be able to solve it. So I give you a minute to try this question. ठीक है? करो, फटाफट करो. So I think बच्चों हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए. Normally wires are cylindrical or cubical in shape. So volume is normally हम for a cylinder हम देखें तो हम लिखते हैं ना उसे pi r square L. So pi r square अगर आप देखो pi r square is nothing else but this area. So this area is pi r square and this is L. Right. So pi r square into L हो गया. So can I say this is equal to A into L? So if A into L है तो A into L constant है, which means that if the wire is stretched to 3 times its length, which means the length becomes 3L, then to have the same volume, the area of cross section would become A by 3. Simple सा question ले रहा हूँ, but ये है कि revision कर लेते हैं, कोई problem नहीं है. So हमारी पहले resistance R जो है that is equal to rho L upon A. The new resistance R dash will be equal to rho. The new length is 3L. And area is A by 3. So this becomes 9 rho L upon A and hence it is equal to 9 times R. Simple. Nothing to worry, nothing to be stressed about. But ये simple question आ सकते हैं 1 mark में, आते ही हैं, हर बार आते हैं. So keep this in mind. Next is a question like this. What is the current I drawn from 5-volt source? Right. Total current from the battery. Now, if you look at this particular structure, the structure is similar to some known structure to you. And if you know that structure well, I think you can understand how to find the current. So let's say this point is A. हम normally ना naming कर लेते हैं. Naming इसलिए करते हैं कि we can restructure a structure if we know the naming. So let's say this point is A. I am calling this point as B. This point is called C, and this is D. So you can see that this is how we could name the structure. Now let me put point A here. Point A से दो resistances हैं. One is a 10 ohm resistance. This starts from point A, goes to point C. Right, sorry, point B. I'm so sorry, point B. There's another resistance that starts from A and goes to a point C, which is 5 ohms. Another resistance starts from point B and goes to D. This is 20 ohms, and between C and D is 10 ohms. And you have another resistance which is 10 ohms here. And you put a battery here, This battery is a battery of 5 volts. Now, what is the current drawn? बच्चों current drawn की बात करें तो this is a balanced Wheatstone bridge. I hope all of us can see that. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फटाक से इस रेजिस्टेंस को हटा दो. अब मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हो गए, ऊपर हो गई दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में 30 ओम्स, नीचे 15 ओम्स और बैटरी. अब सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूंगा तो आर इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा 15 into 30 upon 15 plus 30, that is 45. So 15 ones are 15
3s are 3 1s are 3 10s are इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई 10 ohms. तो अब बेसिकली मेरा सर्किट कन्वर्ट हो गया फटाक से 5 volts and 10 ohms. So current होता है is equal to V by R. So I हो गया मेरा V, that is 5 volts upon R, that is 10, which is 1 by 2 amperes. Simple question, easy to do. बट प्रैक्टिस करते चलते हैं, एग्जाम पास है इसलिए देखना बहुत जरूरी है. राइट, आई होप यू ऑल आर डूइंग इट विद मी. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. ओके, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे. मैं अलग अलग तरफ से क्वेश्चंस ले रहा हूं इसलिए कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता चलूं. इंपॉर्टेंट चीजों पे आने से पहले मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. पावर बच्चों, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R एंड पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R. सबसे बड़ा कंफ्यूजन, विच फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड व्हेन. बच्चों ये कब यूज होगा? व्हेन यू आर गिवन V एंड I. ये फॉर्मूला कब यूज होगा? व्हेन यू आर डूइंग अ कंपैरिजन of resistors where they are in parallel. क्योंकि पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट होती है? V. तो अगर आपका V कांस्टेंट हो गया तो आपकी एक चीज कंट्रोल में हो गई. तो यू कैन सी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? when you have to do a comparison but the resistors are in series. अब सीरीज है अगर, और अगर कुछ भी नहीं है तो भैया यही चलेगा, तो यही चलेगा और कोई तरीका नहीं है. राइट, सो इन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट इसलिए है. नाउ लेट मी कम टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 volts, दिस इज V, 100 watt, दिस इज P. द पावर कंज्यूम्ड बाय इट व्हेन ऑपरेटेड एट 110 volts. अब हम पावर निकालने के लिए हमें पहले केस में P गिवन है इज 100, हमें V गिवन है which is 220. सो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम इस डिवाइस की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P. सो V स्क्वायर बाई P का मतलब हो गया मेरा कितना? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100. सो दो जीरोस कैंसिल हुए, ये हो गया 22 का स्क्वायर हो गया कितना अपना? 484 ohms. This is the resistance. Now it says what will be the power if it is being used across a 110 volt supply. तो अब P dash is equal to 110 into 110 the new V square upon 484. 484 को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे क्या लिख लें? 22 into 22, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपके लिए कैंसिल करना इजी होगा, है ना. सो 22 5s are 110, 22 5s are 110, so this becomes 25 watts. So if you are reducing the voltage, तो power would reduce accordingly. अब क्योंकि R कांस्टेंट था, आप एक और काम भी कर सकते थे. आप सीधे बोल सकते हो, क्योंकि R कांस्टेंट है तो आप सीधे बोल सकते हो कि P is directly proportional to V square. So हमारा पहले केस में P1 is equal to V square by V1 square by R, और P2 हो गया V2 square which is V1 by 2 का square by R. So you can clearly see P2 हो गया आपका कितना? V1 square by 4R, और V1 square by R is P1, so ये हो गया P1 by 4. सिंपल, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो. whichever is comfortable, do it, but do it. That's the important thing. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. The resistance of a wire is 5 ohms at 50 degree centigrade and 6 ohms at 100 degree centigrade. The resistance of the wire at 0 degree centigrade is, हम सब जानते हैं RT is equal to R0 into
1 plus alpha delta t। बच्चों हम जानते हैं अल्फा कांस्टेंट होता है, बट अल्फा कांस्टेंट होता है बिकॉज इट इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम अ गिवन टेम्परेचर। इसलिए याद रखना कि हम जो डेल्टा टी ले रहे हैं इसे हम T2 माइनस T1 लिखेंगे, और ये T1 जो है इसे 0 डिग्रीज वाली वैल्यू लेंगे। ये नहीं कि डेल्टा टी में आप कुछ भी पुट कर दोगे। सो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। तो पहले हमारी रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ohms इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी हमारा कितना हो गया 50। दूसरे केस में दी रेजिस्टेंस इज 6 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 100 अल्फा। ये ध्यान रखना है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, आर नॉट की वैल्यू विच इज एट 0 डिग्रीज। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, मैंने इसीलिए आपको बोला, सो व्हेन यू एक्सपैंड दिस यू गेट 5 इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 50 अल्फा आर नॉट, एंड यहां से आपको मिला 6 इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 600 अल्फा आर नॉट। सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। सो पहले वाले केस में इट इज 50 अल्फा आर नॉट, दूसरे केस में इट इज 100 अल्फा आर नॉट। ठीक है, अब आप कैसे एलिमिनेट करोगे, आपको आर नॉट की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधे सीधे कर सकते हो कि यहां से क्या आ गया हमारे पास, 5 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 50 अल्फा आर नॉट, और दूसरे केस में आ गया 6 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 100 अल्फा आर नॉट। सिंपल है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कर दो डिवाइड, सो व्हाट यू गेट हियर इज 50 अल्फा आर नॉट, और यहाँ पे आ गया आपका 2, सो यू गेट 2 इंटू 5 माइनस आर नॉट is equal to 6 minus R naught. So 10 minus 2 R naught is equal to 6 minus R naught. So अब क्या हो गया मेरा, 10 minus 6 is equal to 2 R naught minus R naught, that is R naught. तो R naught आ गई हमारे पास, 4 ohms, question solved. So rather than worrying much about the mathematical part, आप सब कर ही सकते हो, प्लीज डू दी इक्वेशन फॉर्मेशन प्रॉपरली। और ये दो इक्वेशंस आपने की हैं, आप कई बार लोग गलती से ये कर देते हैं कि 6 इज इक्वल टू 5, ये हो गई आर टी, ये हो गई उनकी आर नॉट। आर नॉट का मतलब है लोअर टेम्परेचर वाली रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी हो गया 100 माइनस 50। बच्चों ये गलत है, ये इक्वेशन हम याद रखना बच्चों, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम जो आर नॉट की वैल्यू ले रहे हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ले रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, डू इट प्रॉपरली, यू विल गेट द राइट आंसर। दिस इज वन थिंग दैट ईच वन ऑफ अस हैज टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड। मैं थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ चलता हूं, और बच्चों में एक चीज टच करना चाहता हूं, दैट इज सिंप्लीफाइंग circuits. Now, when you see a Wheatstone bridge, what does it tell you? ये resistance, let's say कुछ R, ये resistance कुछ 2R, ये resistance कुछ 4R, तो ये resistance कितनी होगी, ऑफ कोर्स 8R होगी। और बैटरी अगर यहां पर है, then whatever resistance we may put along the other diagonal does not contribute to the circle, because we all know that the current in this arm is 0. The galvanometer shows a 0 reading. So when you have a 0 reading across a resistor, it means these 2 points are at the same potential. So if the potential of this point is V, this will also be V. बच्चों आपको कभी भी किसी सर्किट में ऐसा नेटवर्क मिलता है
जैसा मैंने अभी दिखाया, आप उस सर्किट में अपना सिमेट्री अप्रोच लगा सकते हो। Now, what is the symmetry approach? This approach says that if you assume this line where the potentials are same across as a mirror, आप इसे मिरर मान लो, तो इधर जो R है उसकी इमेज आपको क्या दिख रही है, 4R, इधर जो 2R है उसकी इमेज क्या दिख रही है, 8R. So can I say that the mirror is a magnifier and all resistances on the other side of the mirror are becoming 4x? जब भी कभी आपको ऐसा लगे तो आप इस बीच वाले रेजिस्टर को निग्लेक्ट कर सकते हो. दैट इज द सिमेट्री अप्रोच. नाउ लेट्स से हाउ डू आई पुट इट टू यूज. टू पुट इट टू यूज, मैं एक सर्किट बना रहा हूं. ये एक रेजिस्टर्स का सर्किट है, ठीक है. यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी. लेट मी इरेज अ पार्ट ऑफ इट टू मेक इट मीनिंगफुल फॉर यू. बच्चों साथ साथ ड्रॉ करते रहना. आप लोग ड्रॉ करोगे तभी कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. सो लेट से ये रेजिस्टेंस यहां पर है कुछ 4 ohms, ये रेजिस्टेंस है कुछ 6 ohms, ये रेजिस्टेंस है कुछ 10 ohms, ये रेजिस्टेंस है कुछ 8 ohms, ये रेजिस्टेंस है कुछ 12 ohms, और ये रेजिस्टेंस कुछ भी है 13 ohms. And I am asked to find the equivalent resistance between the points A and B. I have to find the equivalent resistance between A and B. Now A and B are on the two sides of this diagram. So when I look at this circuit diagram where A and B are on the two opposite sides, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मिरर कहाँ assume कर सकता हूँ in this electrical circuit? I can assume the mirror to be at this line. Now, if I take this as the mirror, what happens? You can see that the resistance here and here are 2x of the resistances on the left hand side. तो 4 ohms का 2x हो गया 8 ohms, 6 ohm का 2x हो गया 12 ohms. अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है 10, क्योंकि मिरर के लेफ्ट और राइट में मुझे सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस 10 को मैं ब्रेक करूंगा so that one part comes here and two parts come here. So I'll have to divide 10 into 3 parts. So let's say one part is 10 by 3, the other part is 20 by 3, and this is what I can use to replace the 10 ohm resistor here. I hope आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है. पहले सर्किट को यहां तक ड्रॉ कर लीजिए and then I'll subsequently take you to the next level in this circuit. ठीक है, चलो यहां तक ड्रॉ. So I hope बच्चों इस स्टेज तक हमने डायग्राम बना लिया. Now what I'm doing is let me first remove this 10 ohm वाला resistance from here. So I can actually remove it like this. उड़ा देते हैं हम और इसको कर देते हैं रब. और यहां पर अब हम 2 रेजिस्टर्स लगा रहे हैं. एक रेजिस्टर हमारा ये वाला यहां पर और दूसरा यहां पर. So I hope इतना क्लियर हुआ. This is 10 by 3 ohms. This is 20 by 3 ohms. ठीक है. So 10 by 3 हो गया, 20 by 3 हो गया. Now you can see that each resistance to the left of this circuit when multiplied with 2 gives you the mirror images which are there. अब आप इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप इतना समझ गए होंगे कि this point and this point are at the same potential, let's say V each, whatever is the value. अब अगर इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो भाई ये वाली रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा, उड़ा दो.
आप उड़ा के इन सबको एक सिंगल वायर से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, इफ यू कॉल दिस पॉइंट एज सी, this will also be called as C, and this will also be called as C. Now between A and C, you can see that you have three resistors in parallel, 4, 6 and 10/3. So आप इनका इक्विवेलेंट निकाल लोगे। इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/RAC is equal to 1/4 plus 1/6 plus 1/10/3 यानी 3/10। ठीक है, सो अब हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हम सिंपल काम करते हैं, हमने एलसीएम ले लिया लेट से 60, तो हमारे पास आ गया 15 प्लस 10 प्लस 18। ठीक है ना, सो 15 प्लस 18 हुआ हमारा कितना, 33 एंड 10 43। सो RAC आ गया मेरे पास 60/43. Now I can clearly see that RCB में सारी रेजिस्टेंसेस डबल हो रही हैं, तो ये भी जो हमारा है ये डबल हो जाएगा 60/43 का, तो ये हो जाएगा 120/43, और RAB which is to be found will be sum of these two, which is nothing else but 180/43. Done. Thank you. Simple, easy to do. तो ये सिमेट्री अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में हेल्प करती है। याद रखिएगा, व्हेन यू आर फाइंडिंग अ मिरर, प्लीज रिमेंबर दैट if I have to calculate RAB, then A should be on one side of the mirror and B should be on the other side of the mirror. Mirror कभी ऐसे मत ले लीजिएगा कि both A and B points are on one side of it. A and B should be mirror image of each other. ऐसी लाइन के along mirror लेना पड़ेगा, और मिरर वाली लाइन पे सब पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, so you can directly connect them, and if there is any resistance in between that path, that can be neglected because there will be no current in it. That's how it is. So मजा आया बच्चों, समझ में आया होगा, तो जरूर इसको सीख के अच्छे से करने की कोशिश करना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question says, in the circuit given here, the galvanometer G reads 0. So galvanometer की रीडिंग 0 है। If the internal resistance of the battery is 0, यानी बैटरी का small r जो है, that is also given to me as 0. What must be the resistance of the wire marked R? So मुझे ये वाली R निकालनी है, that's the question mark. So please try it for 2 minutes and then I discuss it with you. Give 2 minutes to it. I hope these things are making sense to you. You're able to do them. You're able to understand and grasp the things, and hopefully you'll do well. My writing pad is losing its charge, so let me connect the charger in the meanwhile. Okay, so now how do we do this? But so normally in this kind of a question, you know that there'll be a current I1 that's coming from here. Let me call that as I. It will go here. Then we assume another current I dash from here, and we assume that these two currents will go into this arm, and so we get I plus I dash coming in. But now it says that the galvanometer is showing a 0 reading. It means मेरा I dash जो है वो 0 है। I dash अगर 0 है तो मैं I dash को हटा देता हूँ, इधर से हटाया तो इधर भी सिर्फ I आया। So now what is the situation? There is a current I. The current I goes like this, and there is no current on the other side, which also means that if I look at this particular resistor, iske cross potential difference IR is equal to 2 volts only, which is equal to the potential difference of this battery. Now let me apply loop law here. Loop law मैंने लगाया, मैं इधर से चला तो मैंने कहा 6 minus 10I minus IR, which is 2 volts, is equal to 0. So this IR can be written as 2. So I get 6 minus
10i minus 2 is equal to 0. So 10i is equal to 4. So I is equal to 0.4 amperes. Sorry, I is equal to 0.4 amperes. Now, when I've got I as 0.4 amperes, I know I into R is equal to 2. It means R is equal to 2 by I. That is equal to 2 upon 0.4. So this becomes 5 ohms. So the value of resistance R is 5 ohms. Simple. How did we get it? I hope all of you understood. So Dharna mat aise circuit say just hit them and use the Kirchhoff's law carefully. अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है galvanometer as an ammeter, galvanometer as a voltmeter. I'm not sure how many of you are comfortable using a galvanometer as an ammeter or voltmeter, but physics सबने पढ़ी है और सबको समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या होती है. Now let me try to explain it to you. Galvanometer, galvanometer as an ammeter. बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. Let's say I have a battery whose EMF is E, internal resistance is negligible. You have a load resistance R, and when you connect a galvanometer, बच्चों समझने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो galvanometer का मतलब एक रेजिस्टेंस है. Resistance, let's say it's RG, and this is it. So before the meter was there, the current in the circuit sorry guys, the writing pad is giving some trouble, so just give me a minute. So let's put it this way. Before the meter was connected, before RG was connected, we know that I was equal to E by R. But after you connected the galvanometer, what happened? क्या हुआ बच्चों? एक RG resistance आ गई तो current change हो गया. It became E upon R plus RG. अब हो गया पंगा. भैया अगर current change हो गया, it means कि हम गलत current measure कर रहे हैं. And imagine अगर R बहुत छोटी है, डिवाइस जो आपने लगाई हुई है सर्किट में उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है और आरजी उससे कंपेरेबल है तो बहुत बड़ा पंगा हो गया. करंट ऑलमोस्ट हाफ वैल्यू तक कम हो जाएगा. सो वी नीड टू लुक एट सम वे टू इंश्योर दैट आवर आई डैश इज वेरी क्लोज टू आई. अब हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस का इंपैक्ट कम करना है तो हम उसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं. So that is what you do when you convert a galvanometer to an ammeter. Now the moment you attach this particular resistance, what happens? That the resistance of the meter or the meter resistance, instead of RG, if RS is very, very small compared to RG, the R equivalent is very, very close to RS. So आपने RG और RS के कॉम्बिनेशन से RS को अगर छोटा लिया, लेट से आपकी RG है 100 ohms और RS है 1 ohm, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल में वो लेस देन 1 ohm होगा. तो आपने 100 ohm के रेजिस्टेंस की जगह इंपैक्टफुली 1 ohm का रेजिस्टेंस कर दिया. अब ये R प्लस ये 1 ohm का रेजिस्टेंस मिलके इफेक्टिवली सर्किट की रेजिस्टेंस क्लोज टू कैपिटल R ही हो गई, इसलिए करंट ऑलमोस्ट वैसा ही आ गया. एंड दैट इज हाउ वी लुक एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन है.
इसीलिए टू कीप द करंट अनइफेक्टेड and we want to convert an a galvanometer to an ammeter, what we do is we connect a shunt resistance in parallel. Shunt resistance RS is a shunt resistance और शंट रेजिस्टेंस का मतलब है इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. तो जैसे ही आपने काम किया हुआ क्या कि आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई. मीटर की जो रेजिस्टेंस अप्लायंस की है वो उतनी रही, मीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई. और क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज नेटवर्क इज नॉट चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब हम यहाँ पे करंट की बात करते हैं. ये जो करंट है ये यहाँ के स्प्लिट होगा. ये करंट इसमें कितना जाएगा, IG जाएगा, और ये इधर कितना आएगा, I माइनस IG करंट आएगा. सो हम अब लिख सकते हैं IG इंटू RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS. सो अब इसे यूज करके हम कुछ भी इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत कुछ होता है. अब बच्चों याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर में करंट पूरा नहीं पास होता, सिर्फ IG करंट पास होता है, बट वो रीडिंग I की दिखाता है. सो करंट IG पास हुआ बट हम उसे पहले ही कैलिब्रेट ऐसे कर देते हैं कि भाई अगर करंट 1 मिली एम्पियर हो गया तो इसे 100 मिली एम्पियर दिखाना है यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो हम उसे कैलिब्रेट ऐसे कर देते हैं कि जहां पे 1 मिली एम्पियर है वहां पे 100 मिली एम्पियर लिख देंगे ताकि वो क्लैरिटी हो जाए. दैट इज हाउ वी कैलिब्रेटेड. सो कैलिब्रेशन जो स्केल पे दिखता है, जो रीडिंग दिखती है आपको गैल्वेनोमीटर में, एक्चुअली उतना करंट नहीं पास हो रहा है. करंट कितना पास हो रहा है, IG, बट वो दिखा क्या रहा है, I. और उस I और IG में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो वो भी मैं निकाल सकता हूं. वो कहां से निकलेगा, इसी इक्वेशन से निकलेगा. क्या है इक्वेशन, I RS माइनस IG RS इज इक्वल टू IG RG. सो IG वाले दोनों टर्म्स एक तरफ ले आऊंगा तो I इंटू RS इज इक्वल टू IG RS प्लस RG या RG प्लस RS. सो I हो गया हमारा RG प्लस RS डिवाइडेड बाय RS into IG. And you can see that this part is constant, so I is directly proportional to IG. So हम मीटर में करंट IG पास करते हैं और वहां पे रीडिंग ये वाली I की लिख देते हैं. इसीलिए आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है मीटर में I करंट पास हो रहा है बट मीटर में IG करंट पास हो रहा है. दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब इस बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं. गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस. तो ये 50 ओम किसकी वैल्यू है बच्चों, RG की वैल्यू है. गिव्स अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विद 1 मिली एम्पियर करंट. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है विद 1 मिली एम्पियर करंट. इसका मतलब अगर उसमें IG 1 मिली एम्पियर आ गया तो वो बहुत कंप्लीट डिफ्लेक्शन दे देगा. अब वो कह रहे हैं व्हाट वैल्यू ऑफ शंट नीड्स टू बी एडेड सो दैट इट इज कन्वर्टेड टू एन एमीटर विद फुल रेंज ऑफ 2 एम्पियर्स. सो इसका मतलब जब उसमें IG हम पास करें 1 मिली एम्पियर, सो हमें I कितना दिख जाना चाहिए, 2 amperes. And we want to find the value of RS. ठीक है बच्चों. सो हम कह सकते हैं I is equal to RG plus RS by RS into IG. सो I हो गया 2, यहां आ गया RG that is 50 plus RS upon RS is equal to into 0.1 मिली एम्पियर का मतलब 0.001 एम्पियर्स, या मैं इसे लिख सकता हूं 1 मिली एम्पियर का मतलब 1/1000 एम्पियर्स. सो अब हमारे पास आ गया 2000 RS इज इक्वल टू 50 प्लस RS. सो अब बच्चों समझ में आया, आप RS निकाल सकते हो. अप्रोक्सीमेटली 50 by 2000 हो गई उसकी वैल्यू, एंड दैट इज हाउ यू गेट इट.
सो हमने यहाँ पे कर दिया उसे सॉल्व। ठीक है जी। सो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इफेक्टिवली आप आंसर निकालना सीख गए हैं, राइट। सॉल्व कर लेना बच्चों क्लैरिटी के साथ, यू वोंट मेक अ मिस्टेक फॉर श्योर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ना, ये 2 माइनस पॉइंट, इसमें से इसको निग्लेक्ट कर दिया हमने। तो ये सीधे 50/2 हो गया, 25 इंटू 25/1000 हो गया 0.025 ओम। सिंपल सिंपल। सो इतनी कम होती है शंट रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अब हम बात करते हैं हाउ डू वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्ट मीटर, राइट। नाउ हाउ डू यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर हम सब जानते हैं सर्किट में कैसे लगाया जाता है बच्चों। अगर मुझे वोल्ट मीटर चाहिए तो मैं यहाँ पर, मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है, और मैं इसका अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर मेजर करना चाहता हूँ। सो व्हाट डू आई डू, मैं इस रेजिस्टर आर के अक्रॉस आई पुट अ वोल्ट मीटर which is nothing else but a galvanometer of resistance Rg। यहाँ पे मैंने अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया सीधा सीधा, सो अब क्या होगा कि दिस इज हाउ दिस सर्किट चेंजेस व्हेन देयर इज दिस चेंज इन दिस सर्किट। सो अब क्या हुआ इसमें, इमेजिन करो बच्चों, Rg, ये R जो है ये तो है कुछ 1000 ओम्स, हीटर है लेट से, और ये रेजिस्टेंस है कुछ 50 ओम्स। सो पहले भी ये तो थी 1000 ओम्स, और ये 50 लगने की वजह से क्या हुआ, इन दोनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में जब भी कई सारी रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो 50 ओम से भी कम आएगा। सो जो 1000 ओम की रेजिस्टेंस थी उसे आपने 50 ओम्स में कन्वर्ट कर दिया, 50 ओम्स से भी कम में। सो करंट एकदम शूट अप कर जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लगाते हैं कि ये वाली रेजिस्टेंस जो नीचे है, ये हमारी जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो डिवाइस की रेजिस्टेंस से बड़ी हो। तो हम डिवाइस के साथ यानी गैल्वेनोमीटर के साथ यानी आरजी के साथ एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। जैसे हमने ये लगाया तो अब आरजी प्लस आरएच हर हालत में 1000 से बड़ा होना चाहिए और ठीक ठाक बड़ा होना चाहिए, ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब 1000 के क्लोज आए। 1000 से थोड़ी कम आएगी बट क्लोज टू 1000 आए। सो वी आर नॉट चेंजिंग द करंट and we are effectively maintaining a very nice and decent circuit. Now the current will remain almost unaltered। I current आया, इधर आ गया कितना IG, और इधर कितना आ गया I माइनस IG। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा VG, दैट इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस IG इंटू RH, और it is also equal to I minus IG into R। जो भी डेटा दिया हो हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली एंड देन आई विल मेक यू डू अ क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohms gives a maximum deflection with 1 milliampere, यानी IG 1 milliampere पास हुआ तो काम होगा। What resistance needs to be added in series so that it is converted to a voltmeter with full scale deflection of 100 volts? तो हमें यहाँ पता चल गया कि हमें वोल्टेज कितना मेजर करना है, 100 volts, और हम जानते हैं V is equal to IG into RG plus RH, and RH is supposed to be found। So V कितना है अपना 100, यही लिख देते हैं बच्चों। IG कितना है 1/1000 is equal to RG plus RH। So इधर मैं लिख सकता हूँ 10 raised to the power 5
is equal to Rg plus RH. So Rg अपना है 50 ohms. So ये कितना होगा आप देख सकते हो. This will be 10 raised to the power 5 minus 50 ohms. That is the answer of RH. ठीक है. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नोट करना है, नोट कर लीजिए. I'll also show you the printed type solution of it, but this is how you have to do it. I hope most of you understood. Be very, very careful with the data. Write it down clearly. Know how the formula came. आपको मैंने इसीलिए derive कराया ये formula so that you know how this formula came. And if you know how this formula came, then there is nothing that can go wrong. The same recorded session is going to be available to the aspiration accounts of all of you. So in case you want to revisit, revise any concept, please do it from here. So this is how we do it. आपने अभी किया तो ये आ गया आंसर आपका कितना 99950 ohms. So such high resistances are connected to convert a galvanometer into a voltmeter. ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. Now let me come to the case of a meter bridge. A meter bridge works on the principle of a Wheatstone bridge. So what we do is हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, एक रेजिस्टेंस है S, और हम लेट से R फाइंड करना चाहते हैं. R is the unknown resistance. So हमने R is unknown, S is known to us. हमने यहाँ पे इनके मिड पॉइंट से गैल्वेनोमीटर लिया. नीचे हमारे पास नॉर्मली एक 1 मीटर लेंथ का वायर होता है. हमने इस वायर पे इस गैल्वेनोमीटर की जॉकी को मूव करना शुरू किया till the reading here becomes 0. The moment the galvanometer shows a 0 reading, it means कि हमारा ये फिगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो गया है और हमारी R अपॉन लेट से नीचे वाले वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ K है. सो इस रेड वायर की लेट्स अज्यूम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू K. तो ये वाली रेजिस्टेंस हो जाएगी KL1, ये रेजिस्टेंस हो जाएगी 100 माइनस L1 इंटू K. तो अब उसके बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ R अपॉन KL1 इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L1 multiplied with K. Now when you write this expression, you can clearly see that this K gets cancelled and you get an equation. And if you have a scale behind the wire, तो जैसे आपको null point मिला, लेंथ मेजर कर ली और आपने 100 माइनस L1 निकाल दिया फटाफट, और अब आपको अगर S known है तो R unknown आप यहां से निकाल लोगे. That's how a meter bridge functions. Got the concept right? Can we look at a question now? So here is a question for you. क्वेश्चन पढ़ो आराम से, ट्राई करो कैसे करना है, then I'll give you the answer. This shouldn't be null point is obtaining, null point is obtained. So first we have a resistance X, which is balanced against a resistance Y, and what they say is the null point is at 20 centimeters. So this length is 20, this is 80 centimeters. Now instead of X, if we put 4X, and it's being balanced against the same resistance Y, of course balance point would shift to the right. So let's say नया balance point कुछ इस जगह पे है. So this length is, let's say, L, and this is 100 minus L. So what they want is they want you to find the value of L.
So you have to find L from here. That's the question. So कैसे करेंगे बच्चों? यहां पे हमने सीखा x upon 20 is equal to y upon 80. ठीक है? So can I say 4x is equal to y? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया. 4x is equal to y यानी कि 4x is equal to y यानी ये भी y है. और अगर ये y है और ये y है तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे? एग्जैक्टली बीच में मिलेगा. सो L विल बी 50 सेंटीमीटर्स. कई बार बच्चे कहते हैं अच्छा 4x हो गई तो आंसर 80 होगा. 80 नहीं होगा. ये दोनों लेंथ अब कितनी हो जाएंगी? 50 सेंटीमीटर ईच, बिकॉज 4x इज इक्वल टू y. तो पहले आप x अगेंस्ट y बैलेंस कर रहे थे, अब y अगेंस्ट y ही बैलेंस हो रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओरली बिना कुछ फॉर्मूला यूज किए हम आराम से कर सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट करेक्टली. Right? Hope this makes sense to you. A beautiful sense to you. अब आते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन पे. और a galvanometer having 100 ohm resistance shows full scale deflection for a current of 50 milliamperes. It is to be converted to an ammeter of up to 5 amperes of current. It can be done by joining a resistance of this much in. मैंने choices भी दे दी यहाँ पे ताकि आप try कर पाओ how to get to this question. So please look at this particular question. Please look at these values. Please apply the formula that you've learned, done, and try it for the next 2 minutes. So बच्चों याद रखना, मैं तब तक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं. यहाँ पे आपको कुछ समझ में आएगा. External resistance, galvanometer resistance, shunt resistance. You have to convert it to an ammeter, so you'll have to assign this IG, I minus IG. मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिराइव करके यहां पे लिख दूं ताकि आप एग्जैक्टली वैल्यूज पुट करके फिर कर पाएं. I minus IG multiplied with RS is equal to IG into RG. So I into RS minus IG into RS is equal to IG into RG. So I into RS is equal to IG into RG plus RS. ठीक है, हमें निकालना क्या था? सॉरी, हम लंबा काम जबरदस्ती कर रहे हैं. हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था resistance. What resistance is to be used? It can be converted to an ammeter to measure up to 5 amperes by connecting a resistance. पूछ रहा था हमसे. So हम यहीं से कर सकते थे. क्या कर सकते हैं? रिलेशंस को बस रीग्रुप करना है. I minus IG into RS is equal to IG into RG. So RS निकालना है तो RS is equal to IG into RG upon I minus IG. So यहाँ पे चलेंगे. हमारा IG कितना है बच्चों? 50 into 10 raised to the power minus 3 into 100 upon 5 minus 50 into 10 raised to the power minus 3. So बच्चों अगर आप देखोगे तो अब ऊपर वाली वैल्यू जो हो गई अपनी 10 raised to the power minus 3 और ये सब कट गया 10 raised to the power 3, तो ये आ गया actually 5 upon roughly 5 minus 50 into 10 raised to the power minus 3.
ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे। शंट रेजिस्टेंस है, बहुत छोटी ही आएगी, तो आपको शायद आंसर दिख रहा होगा। मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5/5 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 5/5 माइनस 15 टू 10⁻³ है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.01 हो जाएगा इन पैरेलल। सो कहाँ 100 ohms की रेजिस्टेंस थी मीटर की, और कहाँ हमने पैरेलल में कितनी रेजिस्टेंस लगाई, 1.01 ohms की। So that is why the shunt resistance has to have a very small value and it should be evident and clear from here. अब आते हैं हम एक सर्किट पे which is based on Kirchhoff's law as well. Kirchhoff's law है तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो आपको सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। Please draw the circuit, please write the equations and then I discuss it. In the given circuit, what is the value of current through the 30 ohm resistor? और जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सर्किट डायग्राम बनाया होगा एंड दिस इज हाउ द सर्किट डायग्राम लुक्स लाइक। सो मैंने एक ऊपर वाला लूप ले लिया, एक नीचे वाला लूप ले लिया, और क्योंकि ये बैटरी से करंट ऐसे आना चाहिए और इस बैटरी से करंट ऐसे आना चाहिए, सो हमने अब यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट को समझने की कोशिश की। हमने इधर से दिखाया है I2 करंट, ठीक है, और इस तरफ से दिखाया है I1 करंट। So what we've shown is I2 comes from here, I1 comes from here. Normally ऐसे सर्किट में जब दोनों से एक करंट कुछ इधर आ रहा हो तो अस्यूम इसमें कितना करंट आया, I1 प्लस I2। अब मैं चला लूप नंबर 1 में। लूप नंबर 1 में इफ यू लुक एट इट, ये जो 40 वाला रेजिस्टेंस है इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। So 40 I1 plus I2 plus 30 I1, क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस में the current is flowing in this direction, so you're moving from high potential to low potential. Whenever you write moving from high potential to low potential, please write the potential difference as positive. And then you write minus 40 is equal to 0. That is how we do it. और फिर वो माइनस साइन हटा के अगर हम 40 को दूसरी साइड लाएंगे तो इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब हम चलते हैं लूप नंबर 2 में। लूप नंबर 2 ऐसे है। सो अगेन इफ आई मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर फर्स्ट, देन हाई टू लो 40 I1 प्लस I2, फिर इसमें आए this point to this point, it is 40 I2 minus 80 minus 40, which is equal to minus 120 or equal to 120 is what you get. ठीक है, so from here the first equation that you get is 7 I1 plus 4 I2 equal to 4, और दूसरी equation I1 plus 2 I2 equal to 3। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो I1 आएगा minus 0.4। I1 minus 0.4 आने का मतलब हमने डायरेक्शन उल्टा अज्यूम कर लिया है, I1 would actually be this way, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो वैल्यू निकालनी थी। सो द करंट थ्रू द 30 ohm रेजिस्टर इज 0.4 amps। Have you been able to understand this बच्चों? हो पा रहा है कि नहीं? आई होप सबने कर दिया है, अगर नहीं किया तो पहले एक बार इस डायग्राम को नोट कर लो अच्छे से। आई होप द इक्वेशंस आर क्लियर टू यू। नॉर्मली वी राइट माइनस साइन here and put it equal to 0. That's how you do it. That's how you form an equation for a loop. Higher to lower potential difference is taken as positive, lower to higher is taken as negative. जब बैटरी देखते हैं तो करंट का डायरेक्शन नहीं देखते, जब बैटरी के थ्रू मूव करते हैं तो we only see whether we're moving from the smaller terminal to the larger terminal, that is the lower potential terminal to the higher potential terminal, or the other way around. If you're moving from low to high, you'll write that potential is negative in the equation on the left hand side। वो ध्यान रखना है बस। और उसके बाद जब आप उन टर्म्स को
राइट हैंड साइड पे लाओगे तो इक्वल टू साइन लगाओगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और वो ऐसे हो जाएंगे. सो दैट्स द चेंज दैट यू नीड टू मेक. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने वाला है, समझने वाला है. यू हैव अ बैटरी, लेट्स से ऑफ EMFE. 3 bulbs of equal resistance are connected as shown in the figure. 3 बल्ब लगा दिए. How will the brightness of B1 be affected if either of the bulb B2 or B3 gets fused? B2 और B3 में से कोई भी बल्ब फ्यूज हुआ तो how will the brightness of B1 be affected? तीनों बल्ब एक से हैं तो मान लेता हूं इनकी रेजिस्टेंसेस कितनी हैं, R each. सो अगर मैं देखूं तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी. बच्चों बहुत डिटेल में कर रहा हूं बट उसके बाद शॉर्टकट बता दूंगा. P2 और B3 दोनों की रेजिस्टेंस R ईच है तो इक्विवेलेंट हो गई R/2, और R/2 और R सीरीज में होने से दिस बिकम्स 3R/2. सो गिव मी अ मोमेंट बच्चों, गिव मी अ मोमेंट. सो R इक्विवेलेंट हो गई कितनी, 3R/2. तो I करंट हो गया कितना, I इज इक्वल टू E अपॉन 3R/2 यानी 2E/3R. ये हो गया I. सो I इसमें अगर इतना है सो पावर हो जाएगी I² इंटू R विच विल बी इक्वल टू 4E/9R. या ऐसे लिख दूं 2E/3R का स्क्वायर हो गया कितना, 4E² multiplied by R, that is equal to 4E²/9R. ये हो गई पावर इन द केस 1. अब इफ B3 इज फ्यूज्ड, B3 फ्यूज होते ही इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा तो अपनी R इक्विवेलेंट कितनी हो गई बच्चों, उस केस में R इक्विवेलेंट कम हो गई. कितनी हो गई जी, सॉरी R इक्विवेलेंट बढ़ गई क्योंकि इन दोनों पैरेलल की जगह हमारी एक सिंगल रेजिस्टेंस है, इसीलिए ध्यान देने वाली बात है. R इक्विवेलेंट बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई सर्किट की, क्योंकि पैरेलल सर्किट, पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस थे, अब एक सीरीज में हो गया उनमें से, और जो दूसरा वाला रेजिस्टर है वो खत्म हो गया तो R इक्विवेलेंट हो गई 2R और I हो गया मेरा E/2R. सो अब ये इसे I' बोल देता हूं. सो अब P2 हो गई हमारी, उस बल्ब 1 की P2 हो गई कितनी, I' इंटू R, और I' कितना हो गया मेरा, E² अपॉन 4R² मल्टीप्लाइड विद R. तो ये हो गई कितनी, E²/4R. अब अगर आप E²/4R को कंपेयर करेंगे 4E²/9R से, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो अब इस कंपैरिजन के लिए. अब आप जानते हो 4/9 जो है दिस इज इफेक्टिवली क्लोज टू 1/2, है ना. 8 होता नीचे तो ये E²/2R हो जाता, ये है E²/4R. तो इसका मतलब पावर फर्दर कम हो गई, इसका मतलब बल्ब विल ग्लो डिमर. सो वो वाला बल्ब फ्यूज होने की वजह से इस बल्ब पे क्या इंपैक्ट हुआ, इट हैज बिकम डिमर. आई होप दैट्स क्लियर, मेक सेंस, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू नीड टू लुक एट इट. Do you want me to repeat it? Let me make you do it again. So हमारा पहले केस में R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट हो गया हमारा, R और R का इक्विवेलेंट हो गया R/2 पैरेलल वालों का, और फिर सीरीज में है R तो हो गया 3R/2. I हो गया हमारा E/R इक्विवेलेंट, दैट इज 2E/3R. सो पावर हो गई कितनी थ्रू द बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R, इस बल्ब के थ्रू पावर देख रहे हैं जो हो गई I²R,
जो हो गई कितनी 4e²/9r² into r, यानी 4e²/9r। जैसे B3 फ्यूज हुआ, ये वाला बल्ब फ्यूज हुआ, हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गई 2r, तो करंट हो गया E/2r, तो पावर थ्रू द बल्ब 1 हो जाएगी कितनी कि it will be equal to I' multiplied with r, which is equal to E²/4r² into r. So E²/4r² into r, that is E²/4r. So आप देख सकते हो पावर ऑलमोस्ट हाफ हो गई कंपेयर टू द प्रीवियस वैल्यू। पावर हाफ होने का मतलब it is consuming half the energy compared to the previous case, and hence it is glowing dimmer. Simple to understand. ठीक है बच्चों, so I made you do some questions today. I hope they've been useful. We've touched upon power, we've touched upon finding resistance in difficult circuits. मैंने simple series parallel circuit नहीं लिए. We looked at meters. So meters were very important because galvanometer and voltmeter usage are very, very difficult to understand at times. So क्यों shunt resistance कम होनी चाहिए, क्यों वोल्टमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस, सॉरी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी होती है टू कन्वर्ट इट टू अ वोल्टमीटर. आई होप ऑल दोस पॉइंट्स आर प्रीटी क्लियर टू यू नाउ, राइट? So with this, I'll stop here. I hope all of you have understood well, and if there are any questions, queries, most welcome. I'm happy to take them. You can post them in the chat box, and my colleague will share it with me, or else you can even share it to me in the Telegram groups. Here's my email ID in case you want to email any questions. You're most welcome to do it. Otherwise, Telegram group है, आप वहां पे पूछ सकते हैं सीधे, right? Thank you guys. Thank you and bye bye.